Dear students, in the previous video lecture, I explained class A and class B commutation technique of thyristor. In this lecture, I am going to discuss two more commutation techniques, that means class C and class D techniques of commutation. So let's start with class C techniques. See, the class C commutation technique is also called complementary commutation. So let us see why it is called complementary commutation and where it will be used. So let's start with the circuit of complementary commutation or class C commutation. See here, you will have the circuit like this. You will have the circuit like this. Here you will have a capacitor. This is thyristor T1. This is thyristor T2. This resistance is R1. This resistance is R2. And you will have a voltage source. Its value is Vs. Clear? So this type of circuit will be available in the case of parallel inverter and current source inverters. Clear? This voltage is plus minus Vs, and this current is suppose this current is IC. This current is IC. Clear? So now what happens? We'll have to take two assumptions. Let us write the assumptions. The first assumption is we assume initially the capacitor was carrying a voltage Vs. Initial voltage across the capacitor is Vs. Initial voltage across the capacitor is Vs. Clear? So this voltage is Vs. Let us representing by Vc. So Vc is equal to Vs. Second condition, let us assume T2 was on and T1 was off when before t less than 0. When time t was less than 0, at that time T2 was conducting and T1 was off. Clear? So let's start with the operation. So let's come to mode 1. What happens in mode 1? In mode 1, T1 is being turned on. So you are going to turn on T1. So when T1 is turned on, so let us see the circuit. The circuit will look like this one. You are having the resistor. You are having short circuited T1. This is the voltage source Vs. This is the voltage source Vs. This is R1. This is thyristor T1. Now you will have the resistor like this. And here you will have a thyristor T2. Clear? Now what will happen? We have to write the expression for current through thyristor T1, that means I T1. You have to write the expression for current I T1, here plus minus Vc. This is R2. This is R2. Clear? So what will happen? Let us see what will happen. You will see that one current will flow through this one. One current will flow through this one, that means through this path. Through the resistor, the current will come through this one. Another current will flow through this path. Clear? So that means we'll have to write here, suppose the current was IC in this direction. Current IC was in this direction. That means we are having two currents. I T1 will be equal to, first current is IR1 plus second current will be IC plus second current will be IC. Clear? So now what we have to do? We have to write the expression for these two currents. So if you write current IR1, so here you see this is the resistor, this is voltage source Vs. So first current will be Vs by R1 plus come to second current. Now we have to write second current. So if you are going to write second current, then you will see that for second current you will have
you will have, see the voltage, see the overall voltage. Here the voltage is Vs, here the voltage is Vs, and here also the voltage was Vs. The initial voltage was Vs. Here also the initial voltage was Vs at time t equal to 0, because capacitor does not allow sudden change in voltage, and you have already assumed the voltage Vs. So the total voltage is 2 Vs. So here the expression for the second current will be IC. It will be 2 Vs divided by R2 into e to the power time constant minus t upon R2C. E to the power minus t upon R2C. So this is the expression for current IT1. Clear? This is the expression for current IT1. Clear? So now what will happen? Now you will see about this voltage. Now this voltage magnitude will start changing. The magnitude of the voltage will start changing. So next let us draw the graph. Let us draw the graph of different currents. So first let us draw the graph of current IT1. If you draw the graph of current IT1, so IT1 is equal to Vs by R1 plus 2 Vs by R2. So here it is Vs by R1, and here somewhere it is 2 Vs by R2. So what will happen? You see that in the first mode current will be decreasing like this. Clear? Current will be decreasing like this. Clear? Similarly, when the current is decreasing like this, now we'll have to write the expression for VCT. We'll have to write the expression for capacitor voltage VCT. So if you write the expression for VCT, so VCT will be equal to how much? V infinity plus V0 minus V infinity into e to the power minus t by tau. So what is the value of V infinity? What is the value of V infinity? See, the value of V infinity will be how much? V infinity means the voltage is flowing, current is flowing through this one. That means the voltage will be reversed when time t tends to infinity. Then capacitor will be fully charged in reverse direction. Reverse direction means V infinity will be minus Vs. So minus Vs plus V0. V0 is already given, Vs minus Vs, that means plus Vs into e to the power minus t by R2C. Clear? So from here what do you write? You write Vs into 2 e to the power minus t by R2C minus 1. Vs into 2 into e to the power minus t divided by R2C minus 1. So this is the expression for capacitor voltage T. This is the expression for capacitor voltage T. So once we got the expression for capacitor voltage T, clear? So now what we have to write? We have to write an equation when this capacitor voltage T will become equal to 0. You have to write the expression for VCT equal to 0, because at that time we will calculate the value of time. And that time will be how much? That time will be equal to nothing but the circuit turn off time of thyristor T2, the circuit turn off time of thyristor T1, because you will see that the current is now, thyristor T2 is not carrying any current. Thyristor T2 is not carrying any current. So if thyristor T2 is not carrying any current, thyristor T2 is not carrying any current right now, because all the currents are flowing through IT1. So what will you see? You will have to write the expression for, you will have to obtain the time TC2. That means here the graph for VC will be like this. Initially the VC curve is coming through this one. The curve is coming like this. So now we have to obtain this time. This time will be called TC2. That means circuit turn off time of second thyristor T2. So let us see how to write.
TC2. Clear? So you know VCT will be equal to 0. That means 2 into e to the power minus t upon R2C minus 1 will be equal to 0. So from here you write ln t by R2C will be equal to ln 2. From here you write TC2 will be equal to R2C into ln 2. So this will be the expression for circuit turn off time of second thyristor. That means the current through second thyristor, if you write the expression for IT2, so IT2 was 0 already up to this time. Clear? Now come to mode 2. At mode 2, what will happen? Now you are going to turn on IT2 thyristor. Clear? Mode 2, you will switch on thyristor T2. So mode 2 T2 is turned on. So when the thyristor T2 is turned on, now what will happen? If you write the expression for current IT2, so here it will be Vs upon R2 plus 2 Vs divided by R1 into e to the power minus t upon R1C. Similarly, if you write the expression for TC2 will be equal to how much? It will be equal to TC1. Now we will write the expression for TC1. So TC1 will be equal to here the value of TC1 will be equal to R1C ln 2. And if you write the expression for voltage across the capacitor in this period, so voltage across the capacitor in this period will be equal to Vs into 1 minus e to the power minus t divided by R1C. That means it will just be opposite of that one. That means here now you will see that the voltage will start increasing like this. So these two are the different curves of the voltages VCT. Clear? So now if you write if you draw the current I2, so when you draw current I2, what you see? If you draw current I2, if you are drawing current I2, this was the axis for first current IT1. Now if you draw IT2, so IT2 here up to this point it will be 0. Now after that what will happen? You are having a constant value, you are having a variable value. So the current will be like this. So what do you see? You see that you are having two thyristors connected in parallel. So when one thyristor, first thyristor is turned on, so it will automatically off T2. When T2 is made turned off, it will turn on, it will automatically switch off T1. यानी कि जब आप T2 को ऑन कर रहे हो, T1 अपने आप बंद हो जाएगा, और जब आप T1 को ऑन कर रहे हो तो T2 अपने आप बंद हो जाएगा. क्लियर? तो इसलिए इसका नाम रखा गया है कंप्लीमेंट्री कम्यूटेशन. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कंप्लीमेंट्री कम्यूटेशन. क्लियर? अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोगों ने ये टर्न ऑफ टाइम तो कैलकुलेट कर लिया. अब हमें क्या देखना है? अब हम लोगों को पता करना है इसमें से कि IT1 की पीक वैल्यू क्या होगी, IT2 की पीक वैल्यू क्या होगी. तो IT1 पीक लिखेंगे फर्स्ट थायरिस्टर के थ्रू पीक वैल्यू IT1 पीक. सो IT1 पीक क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय R1 प्लस 2Vs डिवाइडेड बाय R2. क्लियर? सिमिलरली सेकेंड केस IT2 पीक, if you write IT2 peak, it will be equal to Vs by R2 plus 2Vs divided by R1. Clear? Next, now I am writing one more term, that is safety factor. So what is safety factor? You will see the equation will be TC will be equal to safety factor into TQ. Now what is TQ? TC is circuit turn of time, TQ is device turn of time. It is device
turn of time. It is device turn of time. So what is the meaning of device turn of time? If you remember the reverse recovery characteristic of thyristor, so come from this point, the reverse recovery characteristic was like this. So up to this time it was called TQ, that means device turn of time. That means device takes this much time to turn off. Now what will you do? Now you know that the circuit turn off time means you will have to apply the reverse voltage across the thyristor unless the circuit current becomes zero. Clear? So TC will be how much? From here the time TC will start. Now they are saying that just for the safety purpose of safety, इसका मतलब आपका थायरिस्टर फिर दोबारा नहीं ऑन हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक टीसी लेंगे टीसी पीरियड क्या लेते हैं, टीक्यू से ज्यादा लेते हैं, इसलिए लिखा गया टीसी इक्वल टू सेफ्टी फैक्टर इंटू टीक्यू। तो जब टीसी इक्वल टू सेफ्टी फैक्टर इंटू टीक्यू लिखेंगे तो फ्रॉम हियर व्हाट विल यू राइट, तो हम लोग क्या लिखे हैं, हम लोग जानते हैं टी सी वन इज इक्वल टू हाउ मच, T C1 इज इक्वल टू R1C ln2। तो यहां से अगर हम कैपेसिटर का वैल्यू लिखेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर यहां पर लिखेंगे इट विल बी T C1 डिवाइडेड बाय R1 ln2। अब देखिए डिवाइस का तो टर्न ऑफ टाइम फिक्स होगा, तो डिवाइस का जब टर्न ऑफ टाइम फिक्स होगा इस टाइम को आप लिख सकते हैं सेफ्टी फैक्टर इंटू टीक्यू, सेफ्टी फैक्टर इंटू टीक्यू डिवाइडेड बाय R1 ln2। सिमिलरली अगर दूसरा केस आप लिखें सेकेंड थायरिस्टर के लिए, उस केस में आप क्या लिखेंगे TC2 डिवाइडेड बाय R2 ln2, और वहां पर भी क्या होगा TQ सेम होगा, जब TQ सेम होगा तो यहां पर आप लिखेंगे R2 ln2। क्लियर? अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 you see that numerators are same but denominators are different. If denominators are different, then what you will have to do, if the denominators are different, then you will get two different values of capacitors. अगर डिनोमिनेटर अलग है तो आपको दोनों इक्वेशन में अलग अलग कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या कौन सा वैल्यू लेना है, इसमें हमेशा हायर वैल्यू को सिलेक्ट करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको जब सक्सेसफुल कम्यूटेशन चाहिए, सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर्स चाहिए, उस केस में जो कैपेसिटर का अधिक वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू चूज करना पड़ेगा। अगर कम वाला वैल्यू आप चूज करोगे तो कम वाले वैल्यू को अगर दूसरे इक्वेशन में फिर आपको पुट करना ही पड़ेगा, फिर आपका क्या होगा, ये टीक्यू कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी सेलेक्टेड, हाई वैल्यू ऑफ capacitor will be selected, high value of capacitor will be selected। clear? high value of capacitor will be selected। clear? तो ये रहा हमारा कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर, दैट मींस क्लास सी कम्यूटेशन सर्किट। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका एप्लीकेशंस कहां है, क्योंकि आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आपको एप्लीकेशंस पता होना चाहिए हर चीज का। इसका एप्लीकेशंस आपको दिखेगा पैरेलल इन्वर्टर्स एंड दूसरा आपको दिखेगा करंट सोर्स इन्वर्टर्स। ठीक है, तो ये आपको दोनों आपको यहां पर एप्लीकेशंस दिखेगा। क्लियर? तो ये रहा हमारा, दिस इज ऑल अबाउट क्लास सी कम्यूटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लास डी कम्यूटेशन। नेक्स्ट लेट अस सी क्लास डी कम्यूटेशन, और हम जानेंगे कि क्लास डी कम्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है। तो आप देखिए, वी आर हैविंग नाउ क्लास डी कम्यूटेशन एंड इट्स अनदर नेम इज वोल्टेज कम्यूटेशन, यानी कि क्लास बी कम्यूटेशन आपने देखा था, दैट वाज कॉल्ड करंट कम्यूटेशन, तो ये कहलाता है वोल्टेज कम्यूटेशन। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसका यूज कहां होता है। तो इसके बारे में देखिए, यूज्ड इन स्टेप डाउन
स्टेप डाउन चॉपर्स। आपका कहना होगा कि सर ये चॉपर क्या है? चॉपर डीसी टू डीसी कन्वर्टर को चॉपर कहा जाता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन हम चूंकि सर्किट तो उसी का भी हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम क्लास टी कम्यूटेशन को समझ पाएंगे। तो देखिए कैसे सर्किट बनाते हैं चॉपर का। हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, हमारे पास एक थायरिस्टर है। वी आर हैविंग ए थायरिस्टर एंड आफ्टर थायरिस्टर ए लोड हैज बीन कनेक्टेड। क्लियर? अब आप देखेंगे कि इस लोड में चॉपर अगर रहेगा तो यहां पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रहता है, एफडी। अब आपका कहना होगा सर ये एफडी किसे कहते हैं? ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर? ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब जिस चीज की जरूरत होती है उतना ही बतलाना चाहिए। क्लियर? अब देखिए आगे क्या रहेगा। आगे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा इस तरह से। एक कैपेसिटर के बाद आपको यहां पर इस तरह से एक कैपेसिटर, एक थायरिस्टर, और यहां पर ये इस तरह से इंडक्टर और एक डायोड रहेगा। क्लियर? ये रहेगा प्लस माइनस बीसी और ये रहेगा कन्वेंशनल डायरेक्शन आईसी। ये रहेगा हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन आईसी का। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर इस तरह से सर्किट आपको दिया गया है, ये आपका ऑक्सिलरी थायरिस्टर है। अब कहा जा रहा है कि लोड कितना करंट कैरी कर रहा है? आई नोट। लोड इज कैरिंग ए करंट I naught. This current will be ITM, that means the current carrying by main thyristor. This voltage is VS. अब यहां भी कह रहा है कि भाई कुछ एज्यूम कर लो, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम, पहला क्या एज्यूम कर रहे हैं? कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज विथ VS. कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज with VS वोल्ट। कैपेसिटर इनिशियली VS वोल्ट से चार्ज किया गया है। क्लियर? दूसरा एजम्पशन हम लोग क्या मानते हैं? दूसरा एजम्पशन हम लोग यहां पर मानते हैं कि लोड हमारा हाईली इंडक्टिव है। दूसरा एजम्पशन मानते हैं लोड इज हाईली इंडक्टिव। तो जब लोड हमारा हाईली इंडक्टिव है, इसका मतलब ये आई नोट करंट क्या होगा? ये आई नोट करंट हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जब हमारा आई नोट करंट हमेशा कांस्टेंट होगा, अब हम लोग क्या करते हैं? मोड वन। इस मोड वन में हम लोग क्या करते हैं? एट t इक्वल टू 0 T1 इज टर्न ऑन। अब आप मेन थायरिस्टर को ऑन कर दिए t इक्वल टू 0 पर। तो जब आप मेन थायरिस्टर को t इक्वल टू 0 पर ऑन करेंगे, क्लियर, तो ये मेन थायरिस्टर क्या करेगा? देखिए ये मेन थायरिस्टर देखिए क्या करेगा। जब ये t इक्वल टू 0 पर ऑन होगा, एक सर्किट बना लेते हैं छोटा सा। ये थायरिस्टर रहा और ये कैपेसिटर रहा। अब ये वाला बीच वाला थायरिस्टर तो काम करेगा नहीं, अभी उसको अभी ऑन किया ही नहीं गया है। दिस करंट इज आई नोट, दिस करंट इज ITM। अब क्या होगा? ये देखिए इस इंडक्टर को पाथ मिल गया, इस इंडक्टर को एक पाथ मिल चुका है। ये क्या करेगा? यही IC का डायरेक्शन भी है, तो यहां से IC करंट कैरी करेगा। ये रहेगा हमारा IC करंट। तो जब ये IC करंट है, ये I नोट है, तो टोटल ITM क्या लिखोगे? ITM विल बी रिटेन एज I नोट प्लस IC। अब भाई IC का एक्सप्रेशन क्या होगा? आप लिखो IC का, आपको पता ही होगा, IP साइन ओमेगा नोट T। IP साइन ओमेगा नोट T। क्लियर? अब क्या होगा? इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इस एक्सप्रेशन के बारे में, एट द एंड व्हाट विल हैपन? IC विल बिकम इक्वल टू 0। IC विल बिकम इक्वल टू 0। तो जब IC 0 हो जाएगा, उस समय ITM क्या होगा? ITM विल बिकम इक्वल टू I नोट। ITM विल बिकम इक्वल टू I नोट। क्लियर? अब आपका कहना होगा कि ग्राफ बनाया जाए, क्योंकि उस ग्राफ से हम लोग इस वेवफॉर्म को समझते हैं कि हमारा क्या वेवफॉर्म्स मिल रहा है। तो पहला वेवफॉर्म हम किसका बनाएंगे? फर्स्ट वेवफॉर्म विल बी ड्रॉन फॉर ITM। फर्स्ट वेवफॉर्म विल बी ड्रॉन फॉर ITM। क्लियर? तो मेन थायरिस्टर के थ्रू जो करंट कैरी कर रहा है, इसका वेवफॉर्म क्या होगा? देखिए
करंट का क्या है आई नोट प्लस आईसी। तो भाई आई नोट ये है रहा हमारा, और आईसी क्या मिल रहा है हमें, साइनोसॉइडल करंट मिल रहा है। तो चलिए एक साइकिल के लिए साइनोसॉइडल करंट बना दो, एक साइकिल के लिए साइनोसॉइडल करंट बना दो। क्लियर। इसके बाद करंट क्या होगा, आफ्टर दिस द करंट बिकम्स कांस्टेंट। तो करंट को हमने कांस्टेंट कर दिया, इतना देर तक कांस्टेंट करंट चला, इतना देर तक कांस्टेंट करंट चला। आपका कहना होगा सर वीसी का भी कुछ किया जाए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या होगा, वीसी विल बी इक्वल टू वीएस कॉस ओमेगा नोट टी। वीसी विल बी इक्वल टू वीएस कॉस ओमेगा नोट टी। तो वीएस कॉस ओमेगा नोट टी का मतलब क्या है, वीएस कॉस ओमेगा नोट टी का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ क्या होगा, इनिशियली ये हाईएस्ट था, ये इस तरह से ग्राफ होगा, इस तरह से ग्राफ हमें यहां पर मिलेगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद देखिए क्या होता है, यहां पर आते ही क्या हुआ, यहां पर आते ही अब देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि आईटीएम का वैल्यू एक फिक्स हो गया। आईटीएम क्या हो गया, एक आई नोट के बराबर आईटीएम हो गया। तो जब ये आई नोट के बराबर आईटीएम हो जाएगा, और वीएस क्या देख रहे हैं एट द एंड, वीएस हमारा माइनस प्लस निगेटिव हो चुका है, वीएस हमारा माइनस प्लस निगेटिव हो चुका है। जैसे ही वीएस वाई निगेटिव हो जाएगा, अब क्या होगा, ये करंट फ्लो नहीं करा, आईसी हमारा जीरो हो गया, आईसी हमारा ऑलरेडी जीरो हो चुका है। तो जब ये आईसी भी हमारा जीरो हो गया, अब ये वीसी क्या होगा, ये वीसी अभी क्या करेगा, ये वीसी इस तरह से कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वीसी को फ्लो करने के लिए पाथ नहीं है। क्यों, थारिस्टर अपना करंट कैरी कर रहा है, ये सर्किट यहां से चलेगा नहीं। आपने ऑक्सिलरी थारिस्टर को अभी तक ऑन ही नहीं किया है, जब तक आप ऑक्सिलरी थारिस्टर को ऑन ही नहीं करोगे, ये क्या होगा, ये आपका चलने वाला नहीं है, तो नहीं चलेगा। तो वीसी इस तरह से कांस्टेंट रहेगा, माइनस वीएस की वैल्यू पर यहां पर खड़ा रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मोड। अब हम लोग इस टाइम को बोलते हैं टी ऑन। टी ऑन, टी ऑन का मतलब इस समय हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी थारिस्टर को टर्न ऑन करेंगे। नाउ विल टर्न ऑन द ऑक्सिलरी थारिस्टर। क्लियर। अब देखते हैं भाई ऑक्सिलरी थारिस्टर को जब टर्न ऑन किया जाएगा तो क्या होगा, एट मोड 2, लेट अस राइट मोड 2। तो मोड 2 में क्या हो रहा है, एट t इक्वल टू टी ऑन, t इक्वल टू टी ऑन द ऑक्सिलरी थारिस्टर इज टर्न ऑन, TA इज टर्न ऑन। तो अब ऑक्सिलरी थारिस्टर को जब आप ट्रिगर करोगे तो क्या होगा, ऑक्सिलरी थारिस्टर को ट्रिगर करने से, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए हमारे पास ये मेन थारिस्टर तो था ही, ये आई नोट करंट कैरी कर रहा था, इसे करने दो आई नोट करंट कैरी। अब क्या होगा, ये कैपेसिटर था, ये वोल्टेज आईसी था, ये करंट आईसी था। अब क्या देखोगे कि ये थारिस्टर हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट किया, ये थारिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट किया, ये करंट है हमारा आई नोट। क्लियर। ये हमारा सप्लाई वीएस। तो अब क्या करेगा, अब देखिए क्या होगा कि अब आप देखोगे यहां पर कि जो हमारा ये है क्या नाम, जो हमारा आईसी, ये यहां माइनस प्लस था, माइनस प्लस था। जैसे ही इसे अब शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा, ये कैपेसिटर है, यहां पर वोल्टेज वीएस था और ये वोल्टेज एक दूसरा वोल्टेज वीएस मिला हुआ, ये दूसरा वोल्टेज हमें वीएस मिला हुआ। तो ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा तुरंत ही इसे टर्न ऑन कर देगा। ये क्या करेगा कि इस थारिस्टर को आपने टर्न ऑन किया, अब करंट इसके थ्रू फ्लो करने लगा। अब इस थारिस्टर से होकर करंट ही नहीं जाएगा, इस थारिस्टर से होकर करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसका कारण देखो, आपने जैसे ही इस थारिस्टर को सप्लाई दिया, अब आईसी क्या हो जाएगा, आईसी विल बिकम इक्वल टू माइनस आई नोट। जब आईसी माइनस आई नोट के बराबर हो गया तो आईटीएम क्या होगा भाई, आईटीएम इज इक्वल टू आई नोट प्लस आईसी, दैट मीन्स आई नोट माइनस आई नोट, इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो आईटीएम क्या हो गया, आईटीएम हैज बिकम जीरो। क्लियर, आईटीएम हैज बिकम जीरो। क्लियर। तो आईटीएम हमारा जीरो के बराबर हो गया। तो जब ये आईटीएम जीरो के बराबर हो गया, इसका मतलब ये थारिस्टर क्या हुआ, हमारा टर्न ऑफ हो गया, ये थारिस्टर हमारा टर्न ऑफ हो गया और आईटीएम क्या हुआ, आईटीएम हैज बिकम इक्वल टू जीरो, आईटीएम हैज बिकम इक्वल टू जीरो। अब नाउ हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर वीसी। अब देखो वीसी क्या होगा, आप जानते हो ये करंट अब कांस्टेंट हो गया,
जब ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हमारा आएगा 1/c इंटू आई नोट टी। तो यानी क्या होगा, एक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा, इस तरह से वोल्टेज बढ़ेगा। क्लियर। तो जब ये इस तरह से वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, आप देखिए इस पॉइंट को, नाउ यू सी मेन थारिस्टर का करंट कहां पर जीरो हुआ, यहां पर। इस करंट के जीरो होने के बाद कितने देर तक ये निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहा है कैपेसिटर, ये जितने देर तक निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेगा इस टाइम को कहा जाएगा TCM। दिस टाइम विल बी कॉल्ड TCM। TCM का मतलब सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थारिस्टर। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थारिस्टर अगर आप देखेंगे तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थारिस्टर क्या होगा, आप मेन थारिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम TCM अगर लिखेंगे तो ये क्या होगा, C इंटू VS। यहां पर वोल्टेज क्या है, VS, C इंटू VS डिवाइडेड बाय I नोट, C इंटू VS डिवाइडेड बाय I नोट। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ TCM। अब ये कब तक चार्ज होगा कैपेसिटर, अब ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, अब क्या देख रहे हो, इस डायरेक्शन में गया, वोल्टेज जीरो हुआ, फिर वोल्टेज बढ़ना शुरू किया। When the voltage will start increasing, finally the capacitor will reach at the voltage of plus Vs। तो प्लस Vs रीच होने का मतलब यहां पर आपका वोल्टेज प्लस Vs हो जाएगा। अब कैपेसिटर इस तरह से आपका वोल्टेज इसका बनेगा। तो ये रहा ग्राफ आपका, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस कम्यूटेशन C। अब हम लोग एक मोड 3 भी आता है। मोड 3 क्या कहता है, मोड 3 अब देखते हैं क्या है। मोड 3 कह रहा है कि फ्री व्हीलिंग डायोड को टर्न ऑन कर दो। मोड 3 कह रहा है कि फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होने का मतलब क्या है, देखिए फ्री व्हीलिंग डायोड को पहली बात ऑन करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड को आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो फ्री व्हीलिंग डायोड अपने आप ऑन होगा। फ्री व्हीलिंग डायोड अपने आप ऑन होगा। और ये फ्री व्हीलिंग डायोड कैसे ऑन होता है, देखिए इस चीज को समझिए। यहां पर कैपेसिटर है, यहां पर ये थारिस्टर था, ठीक है। अब क्या आप देख रहे हो, यहां पर वोल्टेज था Vs, और अब आप देख रहे हो कि कैपेसिटर के क्रॉस फिर से वोल्टेज कितना हो जा रहा है, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हमारा माइनस प्लस, हियर इट इज माइनस प्लस, ये वोल्टेज हमारा Vs हो जा रहा है, ये वोल्टेज हमारा Vs हो जा रहा है, ये वोल्टेज हमारा Vs था। क्लियर। तो ये वोल्टेज जब हमारा इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो यहां पर जब वोल्टेज Vs था तो फिर क्या होता है, माइनस Vs, और ये माइनस प्लस Vs। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, इस लोड के क्रॉस वोल्टेज हमारा आ जाता है 2Vs। इस लोड के क्रॉस हमारा वोल्टेज 2Vs आ जाता है, और ये करंट कितना कैरी कर रहा था, I नोट करंट कैरी कर रहा था। अब क्या होगा यहां पर आउटपुट वोल्टेज को देखिए। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ता बढ़ता इस पॉइंट पर पहुंचा, जैसे हमारा वोल्टेज इस पॉइंट पर पहुंचेगा, क्या होगा, इस पॉइंट पर जैसे ही वोल्टेज बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, ये Vs पलट गया, यानी Vs चेंज होकर ये प्लस माइनस Vs हो गया। इसका मतलब ये Vs और ये दोनों Vs एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये दोनों Vs जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो V नोट क्या हो जाएगा, जीरो। V नोट जब जीरो हो जाएगा यानी यहां पर सर्किट नहीं बचा इसे कंडक्शन के लिए, ये भी हमारा ऑफ हो जाएगा। ये पार्ट जैसे हमारा ऑफ हुआ, अब क्या करेगा, ये आई नोट कहेगा हमें तो करंट देना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट लोड इज हाईली इंडक्टिव, करंट आई नोट इज कांस्टेंट। So if current I naught is constant, then there must be some path for the flow of this current. तो ये क्या होगा कि इस डायोड से होकर ऐसे फ्लो करेगा, the current will start flowing through this diode. So this is called freewheeling. This is called the process of freewheeling. तो उसके बाद क्या होगा, freewheeling यहाँ पर होगा। क्लियर। अब इसमें कुछ टर्म्स को लिख लेते हैं, जैसे पहला टर्म हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम करंट ITM पीक वैल्यू। तो बाय ITM की पीक वैल्यू क्या होगी, I नोट प्लस IP। I नोट प्लस ये क्या है, IP क्या है, VS अंडर रूट C बाय L। I नोट प्लस VS अंडर रूट C बाय L। क्लियर। दूसरा देखते हैं यहां पर ITF पीक, दूसरा है ऑक्सिलरी थारिस्टर के थ्रू पीक करंट कितना गया था,
मेरे भाई ऑक्सिलरी थारिस्टर को जब हमने देखा था तो ऑक्सिलरी थारिस्टर के थ्रू पीक करंट कितना गया था, जो मैक्सिमम लोड करंट था वही गया था। तीसरा पॉइंट है टी ऑन मिनिमम। अब देख रहे हैं कि मिनिमम, टी ऑन मिनिमम इसका मतलब क्या है, टी ऑन मिनिमम ऑफ टीएम, यानी मेन थारिस्टर का मिनिमम टर्न ऑन टाइम कितना होगा। ये देखिए मेन थारिस्टर का मिनिमम टर्न ऑन टाइम कितना रहेगा, ये कितने देर तक टर्न ऑन रहेगा हमारा मिनिमम ये थारिस्टर। तो मिनिमम कहां तक टर्न ऑन रह सकता है, इस पॉइंट तक तो टर्न ऑन रहेगा ही रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट आप कुछ नहीं कर सकते हो थारिस्टर के साथ, उसको आपने ऑन किया तो मिनिमम इतने देर तक टर्न ऑन रहेगा ही। तो ये टर्न ऑन टाइम क्या होगा, पाई अंडर रूट एलसी। इसके जस्ट बाद भले आप तुरंत टी ऑन पर यहां ऑफ कर दो, ये होगा, लेकिन अभी क्या है टोटल टी ऑन यहां था, लेकिन हमारा क्या होगा मिनिमम यहां पर आप मैनेज कर सकते हो। तो ये था मिनिमम टी ऑन। और चौथा है हमारा पॉइंट पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ PIV ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का पीक इनवर्स अभी हमने देखा था, ये वोल्टेज था VS, ये भी वोल्टेज हमें क्या था, ये वोल्टेज था माइनस प्लस VS, तो ये टोटल 2 VS हो गया था। और यहां से आपका क्या था, ये डायोड इस तरह से कनेक्टेड था, ये लोड था। तो यही पीक इनवर्स वोल्टेज यहां पर अगर प्लस माइनस 2 VS एम्पियर हो रहा था, तो ये क्या है पीक वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड कितना मिला, दिस इज इक्वल टू 2 VS, दिस इज इक्वल टू 2 VS। जब पीक इनवर्स वोल्टेज मिला तो अब पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ थारिस्टर लिखे, मेन थारिस्टर PIV ऑफ TM। तो मेन थारिस्टर का कितना था वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस आ रहा था VS 6 पॉइंट इज TCM। तो TCM ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, TCM इज CVS डिवाइडेड बाय I नोट। TCM हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। नेक्स्ट TCA, नेक्स्ट वी हैव टू राइट TCA। तो TCA अगर सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ ऑक्सिलरी थारिस्टर देखें तो ऑक्सिलरी थारिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा, ये देखिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ ऑक्सिलरी थारिस्टर, ये पूरा यहां से यहां रहेगा, इस पॉइंट तक रहेगा। ऑक्सिलरी थारिस्टर का मतलब यहां से यहां तक सर्किट इसका ऑफ रहता है ऑक्सिलरी थारिस्टर का। तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा होगा 2 इंटू ये TCA विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 अंडर रूट LC, यानी कि यहां से यहां ऑक्सिलरी थारिस्टर के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज जा रहा है। तो ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन क्या होगा पाई बाई 2 अंडर रूट LC, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 अंडर रूट LC, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 अंडर रूट LC। क्लियर। अब ये हो चुका है 6 पॉइंट्स। 7वां पॉइंट है हमारा कंडक्शन टाइम ऑफ ऑक्सिलरी थारिस्टर। ऑक्सिलरी थारिस्टर कितने देर तक कंडक्ट कर रहा है, कंडक्शन टाइम ऑफ ऑक्सिलरी थारिस्टर। तो T कंडक्शन ऑफ ऑक्सिलरी थारिस्टर। तो ऑक्सिलरी थारिस्टर को अगर हम देखें इसका कंडक्शन टाइम, तो ये यहां से यहां कंडक्ट कर रहा है, यानी इसका डबल, तो ये हो जाएगा 2 TCM। 2 TCM का मतलब हो गया 2 CVS डिवाइडेड बाय I नोट। क्लियर। और एक लास्ट पॉइंट देखते हैं T ऑन इफेक्टिव, इट इज इक्वल टू T ऑन प्लस 2 TCM। सो इफेक्टिव टर्न ऑन टाइम कितना हो रहा है, T ऑन इफेक्टिव T ऑन प्लस 2 TCM। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास C एंड क्लास D commutation. This is all about class C and class D commutation. This will be used in step down choppers. Clear. So this is all about the commutation in the thyristors, the different methods of commutation of thyristor. Now in the next video lecture we'll start the new topic.